अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त फरहान रशीद। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, आज हीरा गोल्ड के केस में एक अहम सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसको जो है आज सुनवाई जो है उतनी ख़ास नहीं हुई है। थोड़ा मायूसी है। कुछ वजह ख़ास वजह होगी तो मैंने पता लगाने के लिए कोशिश किया। तो पहले जो है हम देख लेते हैं कि मतलब हालांकि कोर्ट में हुआ क्या, वो मैटर पहले देख लीजिए। उसके बाद मैं इसका वर्शन जो है फाइनल आउटकम आपको मैं बताता हूँ। We'll take it up in the regular combination. Regular millets? Regular combination. Sure. Merits के application for withdrawal. We'll take it up in the regular combination. We have been hearing this past 1.5 years. Exactly. Merit, one thing is that ED spot number 4 is filed also an fresh AI, fresh IA, and first they have not supplied us copies. On the next date. Next matter. Your Lordship, My lord. file 3 IAs in this for the purpose On of the next- purchasing the property. On the next date. If you want to purchase, get in touch with Mr. Venkat. Already done, Your Lordship. So now, go ahead. So great. Mr. Venkatesh, you proceed in your own way. Well, there is one problem, Malad, which I Ah. have to point out. Well, Malad, we have collected 101.2 crores. Huh. She refuses to execute the registration. Malad, I had prayed even earlier that your lordships may only permit ED to execute the sale. Why she He says there is no direction, despite there being a direction from this court by order dated So 7. we cancel the bail. No. Take her in Bail custody. cancellation. Merit, all the allegations are false, and she Let is them not. put it on She has affidavit. not done anything. Where is this lady? She's not here. She's- She's outside. She Karnataka. doesn't She's present not- herself. She does. Ask her to be present here before us. Next hearing she will be present here. Lordship, for the purpose of purchasing the property, we have letter to the ED itself because the Honorable Court has directed in the order to directly go to the ED. So the letters have gone to ED, but there is no action till date. Put it on. May I please, my lord? My lord, I am They have appealing. not. These are allegations. They have not submitted. Let them put it on affidavit. No clarification. Let them put it on affidavit, my lord. The False application allegation. has been rejected by the Honorable High Court, Lord. Huh? They have not submitted any affidavit regarding that. 8 April, right? The petitioner, what is her name, Novera Sheikh. Novera. Laura, is directed to personally remain present before this court Okay, ma'am. on the next date of hearing. Next matter. Beautiful. Thank you, Malad. Please, sir. Yes. This matter is seeking to challenge तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, आपने देखा कि आज कोर्ट में क्या हुआ। तो नेक्स्ट रेगुलर कॉम्बिनेशन में इसको हियरिंग करेंगे बोल के जस्टिस पर्डीवाला साहब ने जो है ये किया। तो ये रेगुलर का मतलब ये है कि मतलब जो हमारे जस्टिस पर्डीवाला साहब के साथ में जो बैठते हैं उनका नाम है केवी विश्वनाथ। तो आज जो बैठे थे, आज जो जज साहब जो वहाँ पे बैठे हुए थे वो दूसरे हैं, ठीक है। तो वो वजह से क्या हुआ कि आज जो है हियरिंग ठीक से नहीं हो पाई। नॉर्मली क्या है, उनकी जगह कोई दूसरा आया है। केवी विश्वनाथ जी जो हैं उनके साथ जो है आज नहीं थे, शायद उनका कुछ उन्होंने कोर्ट से लीव लिया है। तो ये वजह से आज कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई, ख़ास कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जो है जज साहब ने जो है एडवोकेट वेंकटेश जो हैं, जो ईडी के जानिब से हाजिर हुए थे, उनकी बात तो सुनी। उन्होंने बोला कि तुम अपना काम करते रहो, तुम अपना कुछ भी काम मत रोको, तुम आप आगे बढ़ो। और नोहरा शेख को हिदायत दिया है जस्टिस पर्डीवाला साहब ने कि उसको पर्सनली प्रेजेंट होने के लिए सख्ती से बताया है कि 8 अप्रैल 2026 को नोहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पर्डीवाला साहब के सामने हाजिरी देनी है। और यहाँ पे ये है कि मतलब ये जो है केवी वेंकटेश जी जो हैं, जो जज साहब जो बैठते हैं हमारे जस्टिस पर्डीवाला साहब के साथ, तो वो रेगुलर जो है वो दोनों कॉम्बिनेशन जो बैठते हैं वो कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये 1.5 साल से जो है यही केस को हियरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कोई उनके जगह पे कोई दूसरे जज साहब बैठे हुए थे। तो जस्टिस पर्डीवाला साहब जो है ये वजह से आज जो है कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करना चाह रहे थे, कोई भी कदम जो है नहीं लेना चाह रहे थे। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है करके। फ़िलहाल जो है बस ये अपडेट है कि नोहरा शेख की जो है मुश्किल तो बढ़ती जा रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसको थोड़ी मोहलत और मिल गई है। 8 अप्रैल 2026 तक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह नोहरा शेख तो उसकी जेल की जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है
और ईडी के वकील वेंकटेश जी ने भी वहाँ पे कहा, प्रॉपर्टी के बारे में कहा कि 101 करोड़ रुपए जो है ऑलरेडी जो है जमा हो गए हैं, बायर्स ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं और अभी तक जो है नौहरा शेख जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही करके। तो जज साहब ने पूछा वहाँ पे वेंकटेश जी से कि क्यों नहीं आ रही है वो, तो वो उन्होंने कहा कि उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं है बोल के नौहरा शेख बोल रही है फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद नौहरा शेख के वकील भी कुछ आर्ग्यूमेंट का, जज साहब ने नौहरा शेख के एडवोकेट की कुछ भी नहीं सुनी, सीधा सीधा कहा कि ठीक है उसी को आने दो। 8 अप्रैल 2026 को नौहरा शेख को खुद हाजिरी देनी है और मुझे ऐसा लगता है कि 8 अप्रैल 2026 को नौहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पर्डीवाला साहब के सामने ही जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसको कस्टडी में लिया जाएगा, ईडी कस्टडी में जो है नौहरा शेख को ले लेगी और इसकी बेल कैंसिल होगी और नौहरा शेख फिर से अरेस्ट होगी। और इसके अलावा जो है ईडी ने जो है नौहरा शेख के ख़िलाफ़ क्या क्या बोला था, जो है जो एफिडेविट दाखिला किया था वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, एक तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नौहरा शेख की जो मुश्किला है ना वो बढ़ती जा रही है। वो मुश्किला जो बढ़ती जा रही है उसकी सबसे पहली वजह जो मुझे सेंस हो रहा है, नौहरा शेख ने जो है शिमोगा के जो अखिल और मुनीब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जा कर के अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारी है। वैसे तो हमारी जो बचे कुचे 15-20 हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स के सिवाय कोई भी अपने हक हलाल के पैसे के लिए लड़ नहीं रहा है। मैं अब डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बाकी के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप पे रहते हैं, या तो वीडियो देखते रहे, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, या तो कमेंट्स करते हैं यूट्यूब में जाकर के, या तो मुझे या किसी भी एक हीरा गोल्ड के फाइटर से सवाल करते कि पैसा कब मिलेगा, या तो जो है वो मुतीउर रहमान का वीडियोस आते रहते हैं जो है लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो भी आते रहते हैं लोगों को सुलाने के लिए। तो पब्लिक जो है सोई हुई है, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स जितने भी लोग हैं ये सोए हुए हैं। तो ये केस में अगर कोई भी अगर जान आई है तो ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझे मजबूरन होके कहना पड़ रहा है कि ये नौहरा शेख ने जो पंगा लिया है अखिल और मुनीब शिमोगा के, उन्होंने तो उसको पर्सनली ले लिया, ईगो में आ गए हैं अब वो। तो ईगो की वजह से नौहरा शेख को कम्प्लीटली एक्सपोज करेंगे। इसका फ़ायदा हीरा गोल्ड के विक्टिम्स इन्वेस्टर्स को ज़रूर होने वाला है, क्योंकि ये लोग जो है कहीं पर भी जो है नौहरा शेख की कोई भी चीज़ें जो है उसके जो चाल है वो चलने नहीं दे रहे हैं। हर जगह वो कोई ना कोई जो है सबूत डिपार्टमेंट को पेश करने की बात हो या मीडिया चैनल्स को कोई एविडेंस देने की बात हो, हर जगह जो है ये अपना एक कदम आगे रह रहे हैं। नौहरा शेख के जो भी उसके जो इरादे हैं, बुरे इरादे हैं, उसको नाकामयाब करने के लिए ये अखिल और मुनीब हमेशा जो है शिमोगा के जो भी हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसके, क्योंकि नौहरा शेख अभी अगर अरेस्ट हो रही, पिछली बार आपको याद होगा तो ये नौहरा शेख जब अरेस्ट हुई थी फरीदाबाद के जो रिसोर्ट से, उस टाइम पे भी इन दोनों का ही हाथ था, इन दोनों ही जो है लीड दिए थे डिपार्टमेंट को। तो ये डिपार्टमेंट जाके हैदराबाद की पुलिस जाके नौहरा शेख को रिसोर्ट से उठा के लेके आई और जेल में डाल दी थी। तो इस बार जो है फिर से जो है नौहरा शेख अभी जेल जाने वाली है, उसकी भरपूर तैयारी हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इनको थोड़ा जो है देखिए, हमारी जो हीरा गोल्ड के विक्टिम्स हैं ना 15-20, मैं फिर से कह रहा हूँ गलत मत सोचिए, 15-20 लोग थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़े मेन कोर फाइटर्स हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं बस आलसी लोग हैं, बस घर में बैठ के उनको पैसा चाहिए, उनको थाली में सजा के नौहरा शेख पैसा देगी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये लोग इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। खैर शुक्र अल्लाह का कि ऐसे लोग जो हैं, भले ही वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और कुछ भी हो, नौहरा शेख के लिए ये लोग बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि ईडी ने आज जो एफिडेविट में जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या डाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 101 crores ₹101 crore 75 lakhs and 50,000 ओनली, इतना अमाउंट जो है अभी ईडी के पास, जो प्रॉपर्टीज़ नौहरा शेख की या हीरा गोल्ड की जो जब्त हुई थी, वो प्रॉपर्टियां बेचने के बाद इतना पैसा उनके पास जमा हुआ है। अब ईडी का कहना ये है, उनके प्रेयर्स ये हैं, उन्होंने बहुत बार मेल किया, नौहरा शेख को बोला, तो उसमें से जो है 19.64 करोड़ जो है वो प्रॉपर्टी का जो ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जो है और एक प्रॉपर्टी है जो 2.65 ये हमारे रहीम भाई की है, जिसको रजिस्ट्रेशन अभी तक नौहरा शेख ने नहीं किया। उसके बारे में ईमेल भी किया ईडी ने, बहुत सारे
जो है ये किया है, सेल डीड रेडी कर दिया, उसको नौहरा शेख को बुलाया था और तमाम चीज़ें, इतना मुझे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है। तो इंशाल्लाह इसका एक सेपरेटली मैं बात करूँगा। तो ईडी के प्रयास क्या थे आज अगर ये सुनवाई होती, या 8 अप्रैल 2026 को जो सुनवाई होगी उसका बेस क्या होगा, प्रयास क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ द केस दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी Hyderabad zonal unit, Hyderabad be authorized to execute the sale deeds of the properties auctioned by the Directorate of Enforcement and to complete related formalities for transfer of the auction properties in the names of successful bidders in the office of the respective registration and stamp department, dispensing with the presence of Nahara Sheikh and others who are title holders of the said attached properties. तो नहारा शेख को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया था, बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट नौहरा शेख को हिदायत दे रही थी, लेकिन जो है कोर्ट ने जो है नौहरा शेख ने उनकी कुछ भी नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है उसने। वैसे तो वो ऑलरेडी इसमें आगे मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। तो ईडी के जो हमारे ठाकुर साहब जो हैं, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने उनको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नौहरा शेख अगर कोऑपरेट नहीं कर रही तो कम से कम जो बिडर्स है, जो परचेस किए है प्रॉपर्टी, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को एक परमिशन दे दिया जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी को खुद सेल जो है एग्जीक्यूट करके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दिया जाए बोल के परमिशन मांग रहे हैं। तो आज सुनवाई ना होने की वजह से इसके बारे में कोई हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पॉइंट बहुत अच्छा डाला है ईडी ने। लेकिन पॉइंट 2 जो है, एक आपको याद होगा कि आज ही के डेट में हियरिंग वैसे चल रही है, अभी चालू है एमएसजे कोर्ट में, नामपल्ली के कोर्ट में। नौहरा शेख की बेल की कैंसलेशन की जो एप्लीकेशन ईडी ने डाली है, उसके बारे में जो है जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये केस जो है, ये बेल की एप्लीकेशन जो है, इसको एक्सपीडिएट करो। वैसे जज साहब खुद जो है बेल कैंसिल करने की बात अपने ज़ुबान से बोले, वेंकटेश जी बोलने से पहले ही। इसका मतलब जो है नौहरा शेख के लिए बेल कैंसलेशन पक्का फिक्स है, क्योंकि जज ऑलरेडी जो है अपने माइंड बना चुके हैं इसकी नौहरा शेख की बेल कैंसिल करने के लिए। तो अभी ऑफिशियली उसको ऑर्डर में लाना है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट द ऑनरेबल एमएसजे कोर्ट expeditiously decide the application of bail cancellation moved by enforcement directorate seeking custody of the accused नौहरा शेख। तो नौहरा शेख की कस्टडी के लिए जो ईडी ने जो नीचे की कोर्ट में जो डाली है एप्लीकेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शंस दे कि वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में लेकर चले। डिसमिस द आईए नंबर, जो नौहरा शेख ने जो विड्रॉल के लिए जो डाली है कि वो उसका आईए जो है विड्रा करना चाहती है, उसको मत करो करके, और इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स करने के लिए ईडी जो है उसको विड्रॉल करने मत दो केस को, और साथ के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स करने के लिए इन्होंने प्रयास डाली है। 3 मांगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ईडी ने रखी है। तो खैर जो भी है, इंशाल्लाह देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा करके। फ़िलहाल जो है बस इतना ही है कि हीरा गोल्ड के केस में नौहरा शेख की अभी मुश्किल जो है बढ़ती जा रही है, और आज ही के दिन जो है मुंबई के सेशन कोर्ट में भी कोर्ट में हियरिंग है, उसकी अपडेट मुझे नहीं मिली है, लेकिन कल इंशाल्लाह इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट देंगे। आज नामपल्ली के कोर्ट में जो है क्या हुआ, बेल एप्लीकेशन का क्या हुआ, क्या नौहरा शेख को अरेस्ट किया जाएगा, क्या है तमाम चीज़ें वो भी देखा जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है करके। फ़िलहाल आज की हियरिंग जो है उतना हमें तसल्ली बख्श वाला जो है कोई भी जो है तसल्ली नहीं मिली है, कोई अपडेट नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, 8 अप्रैल 2026 को इंशाल्लाह बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। ये तो मैं पिछली बार भी कहा था, लेकिन क्या कह सकते हैं, पिछली बार जो है एडवोकेट वेंकटेश जी के वालिद साहब जो है गुजर गए, तो उसकी वजह से वो छुट्टी पर थे, उसकी वजह से हियरिंग नहीं हुई थी। इस बार जो जस्टिस पर्डीवाला साहब के बाजू में बैठते हैं, उनके बारे में तो मुझे कुछ ठीक अपडेट नहीं है, जिसको हम कहते हैं केवी वेंकटेश गारू, क्या बोलते हैं उनको, केवी विश्वनाथ जी जो हैं, जो वो नहीं आए आज, उनकी जगह कोई दूसरे जज साहब थे, जो उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, 2 सिटिंग जजेस बोलते हैं। तो ये हीरा गोल्ड का केस क्या है, ये रनिंग केस 1.5 साल से हो रहा है, तो एक नया जज आया फिर फैसला लेना ठीक नहीं है करके, ये दोनों मिलके फैसला लिया जाता है, इसी को बोलते हैं 2 बेंच कोर्ट। तो यहाँ पे 2 बेंच में जो है एक बेंच के वकील जज साहब जो है वो आज नहीं आने की वजह से अगली तारीख दी गई है, इंशाल्लाह 8 अप्रैल 2026 को इंशाल्लाह कुछ अच्छा होने वाला है। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि 8 अप्रैल 2026 को क्या होने वाला है,
और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।